Okay, so let us discuss 2023 question paper of topic 11, which is time series analysis. First question was, which of the following is not a measurement of seasonal variation? We all know कि seasonal variation के कुछ methods होते हैं, which are as follows. First is simple averages, second ratio to moving average, third ratio to trend, fourth लिंक रिलेटिव मेथड एंड एक और मेथड होता है सीजनल वेरिएशन मेजर करने का, दैट इज डी सीजनलाइजेशन. सो 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, बट ऑन द अदर हैंड वन ऑप्शन विच इज दिस ग्राफिकल मेथड, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. ग्राफिकल मेथड यूज होता है ट्रेंड कंपोनेंट को मेजर करने के लिए. इन वन ऑफ द क्वेश्चंस वी विल आल्सो चेक कि ट्रेंड या फिर ट्रेंड कंपोनेंट या फिर ट्रेंड एज इट इज उसको कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए व्हाट आर द अदर मेथड्स. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज increase in sales of a departmental store during festival is an example of dash component of the time series. We know that आपके time series में we have 4 components. First component is your trend component, second is seasonal component or seasonal variation, third is cyclical component or cyclical variation, and the fourth is irregular component. The correct answer is seasonal variation here. Seasonal variation क्या होता है? Seasonal variation usually वो fluctuations होती हैं which are repeated at regular intervals, चाहे वो quarterly intervals हो, monthly repeat हो या फिर weekly repeat हो. For example, the best example is जब भी summer season होता है the sale of ice cream actually increases. On the other hand winter season में sales of ice cream reduce होता है. Similarly festivals के time सेल्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर इन जनरल सेल्स इंक्रीज होती हैं बिकॉज पीपल आर बाइंग दी प्रोडक्ट्स. ऑन द अदर हैंड नॉन फेस्टिवल सीजन या फिर जिसे हम ऑफ सीजन कहते हैं उस टाइम आपकी सेल्स रिड्यूस होती हैं. तो द करेक्ट आंसर इज सीजनल वेरिएशन. ट्रेंड कंपोनेंट में क्या होता था? दीज वर लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज. साइक्लिकल में क्या होता था? बिजनेस साइकिल्स जो हमारे पास होती थी जिसमें कंपोनेंट्स होते थे, दैट वाज योर साइक्लिकल कंपोनेंट. एंड फाइनली इरेगुलर कंपोनेंट वाज योर रैंडम, जिसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और द अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज for the period 2016 to 20 the quarterly averages of price of a certain commodity are given to you. The seasonal index for second quarter is equal to. सीजनल इंडेक्स कैलकुलेट करने का वी हैव अ फॉर्मूला एंड इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन 2020 पेपर में भी आया था. तो सीजनल इंडेक्स इज एक्चुअली इक्वल टू योर एवरेज फॉर दैट पर्टिकुलर क्वार्टर डिवाइडेड बाय ग्रैंड एवरेज and multiplied by 100. So for this particular question अगर आपको find out करना है the seasonal index for second quarter तो न्यूमरेटर इसमें आपके पास सेकेंड क्वार्टर के लिए हो जाएगा 4.25. डिनोमिनेटर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर के लिए फॉर्मूला होता है ग्रैंड एवरेज का फॉर्मूला. दिस इज actually your sum of averages. So grand average is sum of all these averages divided by 4. So once you will sum 3.8 plus 4.25 plus 3.85 plus 4.35 whole divided by 4. This will give you the answer as 16.25 divided by 4 or 4.0625. So we have the numerator and the denominator now. So 4.25 divided by 4.0625 into 100, you will get the answer as approximately 104.6. So this is the formula for finding the seasonal index for second quarter. हो सकता है they could have asked you for the first quarter or the third or the fourth quarter, but the formula remains the same. एक क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए. I have given the quarterly sales data for a company
एंड यूजिंग दी फॉलोइंग एवरेजेस आपको सीजनल इंडेक्स थर्ड क्वार्टर के लिए फाइंड आउट करना है. जब आप फाइंड आउट करोगे आंसर विल बी इक्वल टू 85.4. नेक्स्ट question is which of the following options represents the component of a time series. We have just discussed कि time series के आपके पास 4 components होते हैं, secular trend और trend component, seasonal component, cyclical component and irregular component. तो the correct answer is trend, periodic changes and random or irregular movements. Periodic changes में at times they categorize it into seasonal trend and cyclical variations. So option number 4 is the correct option. Next question was, using the usual notations, the logistic curve that is known as Pearl-Reed curve and used as a measurement for secular trend is given by. It was an unexpected question because usually जब भी हम methods discuss करते हैं तो method of least squares, graphical method of semi-average and method of moving average discuss करते हैं. The correct answer is option number 4. अब ट्रेंड कंपोनेंट को डिटेल में करना है तो लेट अस डिस्कस की मेथड्स क्या क्या होते हैं. तो द फर्स्ट मेथड एज आई टोल्ड इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड इज मेथड ऑफ सेमी एवरेज, थर्ड इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जिसमें वी यूजुअली से मेथड ऑफ कर्व फिटिंग लीस्ट स्क्वायर्स एंड द फोर्थ इज मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस. अब ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स में आपके पास और मेथड्स होते हैं. First is your straight line. So basically we are fitting the straight line और straight line की equation क्या होती है, yt is equal to a plus bt. Second method इसमें होता है second degree parabola. So second degree parabola. Second degree parabola में the equation is yt is equal to a plus bt plus ct square. Then we also have kth degree parabola जिसकी इक्वेशन हो जाएगी और द kth degree curve जिसकी इक्वेशन होगी yt is equal to a naught plus a1t plus a2t square and so on. kth degree है तो we will have ak into t to the power k. Then we also have exponential curves. So exponential curves में we have the equation yt is equal to a into b to the power t. जब आप इसका log लोगे तो you will get log of yt is equal to log of a plus t into log of b. And at times it is written as capital A plus capital B into T. Capital A is actually your log of A, capital B is log of small b. Then we have second degree curve fitted to logarithms जिसकी इक्वेशन होती है yt is equal to A into B to the power T into C to the power T square. And the most important ones जिस पे ये बेस्ड क्वेश्चन था, दे आर योर ग्रोथ कर्व्स. एंड ग्रोथ कर्व्स को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट इज योर मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल. मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल में वी राइट इट एज yt इज इक्वल टू a प्लस b इंटू c टू द पावर t. Second is Gompertz curve, Gompertz curve. Gompertz curve is written as yt is equal to a into b to the power c to the power t. और आप इसका जब log लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, log of yt is equal to log of a plus c to the power t log of b. And then third obviously is your logistic curve. I hope I am clear. So logistic curve की equation we have just seen. All these other equations are there.
I will not be going into the detail because एक question के accordingly you cannot change your complete preparation. So it is better to focus on the questions which have been there. कुछ extra होता है तो I have already covered. इससे related कोई question आएगा तो these are the other equations which you should know. So that is all for today's lecture. And first of all, let's start with topic 11 2022 पेपर. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो 2022 पेपर में आया था वो था कि इन सीजनल वेरिएशंस द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज़ नॉट मोर दैन. सो वी नो सीजनल वेरिएशंस कौन सी होती हैं जो कि रेगुलरली अकर कर रही होती हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स या फिर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. राइट, एग्जाम्पल क्या था सीजनल वेरिएशन का? फॉर एग्जाम्पल ईयरली रेनी सीज़न आता है एंड रेनी सीज़न में आपके रेन कोट्स की या फिर फॉर दैट मैटर अम्ब्रेलाज की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है. राइट, तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सीजनल वेरिएशन. या फिर अगर हम बात करें कि अगर कोई भी फेस्टिवल सीज़न आता है तो उस टाइम आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है. So this is an example of seasonal variation. So seasonal movements are due to nature which repeat themselves periodically in every seasons and they repeat themselves in less than 1 year time. So correct answer is 1 year. On the other hand हमारे पास cyclical variations भी होती हैं. cyclical variations में क्या होता है? cyclical variations repeat करती हैं between 2 to 10 years and sometimes or in some reference books it is also referred as 7 to 10 years. बेसिकली आपको ये याद रखना है कि cyclical variations also ये 2 to 10 years या 7 to 10 years is not a constant thing, ये भी चेंज होता रहता है. ओके, और cyclical variations का एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल was बिजनेस साइकिल्स जिसमें आपके पास प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी वाले फेजेस होते हैं. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ योर साइक्लिकल वेरिएशन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सीजनल वेरिएशन. सो अभी सीजनल वेरिएशन के बारे में डिस्कस किया है. वेरिएशन इन अ टाइम सीरीज विद इन 1 ईयर, ये तो करेक्ट है. रिपीटेड इरेगुलरली, नहीं. We see a regular pattern. Okay, so repeated irregularly is the incorrect answer. Then caused by public holidays. Public holidays की वजह से, let's say if we have public holidays of Diwali season और Diwali time, इस time क्या होता है? Demand of product increases, so increase of sales is observed on the public holidays. और for example कोई भी holiday है for that matter, so people prefer to do shopping on holidays, so it is also an example of your seasonal variation. Then caused by rainfall. rainfall या rainy season है तो it is also your example of seasonal variation. तो correct answer is repeated irregularly. It is not true for seasonal variation. Then next question is the component containing the overall upward or downward pattern of the data in an annual time series is what? This is known as trend, या फिर ये component का नाम क्या है? ट्रेंड component, जिसे हम कैपिटल टी से डिनोट करते थे. रिमेंबर हमारे पास 4 components होते हैं टाइम सीरीज़ के, और 4 कंपोनेंट्स क्या होते थे? ट्रेंड, जिसे हम सेकुलर ट्रेंड भी कहते हैं. देन सीजनल वेरिएशन या सीजनल कंपोनेंट, साइक्लिकल कंपोनेंट या साइक्लिकल वेरिएशन, एंड लास्टली इररेगुलर मूवमेंट्स. तो ट्रेंड में हमारे पास क्या होता था? ट्रेंड एक्चुअली शोज द जनरल टेंडेंसी ऑफ डेटा टू ग्रो और डिक्लाइन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, जिसे हम सेकुलर ट्रेंड भी कहते हैं. तो परसिस्टेंट ग्रोथ हो रही हो या फिर परसिस्टेंट डिक्लाइन हो रहा हो किसी भी टाइम सीरीज डेटा में, दैट इज़ योर ट्रेंड कंपोनेंट. अब व्हाई डू वी से परसिस्टेंट हेयर? परसिस्टेंट और जनरल टेंडेंसी इसलिए वर्ड यूज़ होता है बिकॉज
देयर इज़ अ टेंडेंसी कि वो या तो इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा, बट इस टेंडेंसी के बीच में कुछ ऐसे टाइम्स या फिर कुछ ऐसे शॉर्ट टाइम पीरियड्स भी आ सकते हैं जहाँ पे आपके पास अगर लेट से डेटा इंक्रीज़ हो रहा था, तो कुछ ऐसे टाइम पीरियड्स भी हो सकते हैं जहाँ पे आपको डेटा में डिक्रीज़ दिखाई दे, या फिर अगर डिक्रीज़ हो रहा था तो वहाँ पे आपको एक इंक्रीज़ दिखाई दे। बट ओवरऑल इन जनरल आपका डेटा या तो इंक्रीज़ हो रहा होगा या आपकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही होंगी या फिर आपकी वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही होंगी, एंड दिस इज़ योर ट्रेंड component. Okay, now next question. Next question is, the method of least squares is used on time series data for what? लीस्ट स्क्वायर मेथड हम यूज़ करते थे जब हमें हमारी ट्रेंड इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है, और ट्रेंड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए और क्या क्या मेथड्स थे, या फिर ट्रेंड बेसिकली ऑब्टेन करने के लिए और क्या मेथड्स थे। हमारे पास ग्राफिकल मेथड था या फिर फ्री हैंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या था इसी के लिए, सेमी एवरेजेस मेथड। एंड एक और मेथड क्या था, एक और मेथड था मूविंग एवरेजेस मेथड। एंड लास्टली हमारे पास जो लास्ट मेथड होता है दैट इज़ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में क्या होता था, हम बेसिकली ट्रेंड इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते थे और इसके लिए दो चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इज़ समेशन ऑफ y माइनस वाई हैट इज इक्वल टू 0। वाई हैट क्या है यहाँ पे, एस्टिमेटेड वैल्यू, और y माइनस वाई हैट उससे क्या हो जाएगा, y माइनस वाई हैट हो जाएगा डेविएशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन इज दैट सम ऑफ डेविएशंस शुड इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या थी कि हमें सम ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स देखना है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, डेविएशंस को स्क्वायर करेंगे, उसका सम करेंगे और इसको हम देखेंगे कि ये मिनिमाइज हो जाए या फिर दिस इज़ लीस्ट। ओके, और जब हमारे पास इस मेथड को यूज़ करके जो ट्रेंड इक्वेशन आती है हम उसे लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी कहते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। और अगर हमारे पास लेट से एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड है तो उसकी इक्वेशन क्या होती थी, y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और आपके पास फर्दर इस y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स को फाइंड आउट करने के लिए शॉर्टकट मेथड भी था। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेंड आपका पैराबोलिक ट्रेंड भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल ट्रेंड भी हो सकता है, बट द मेन मोटिव टू टेल हियर इज कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स से आपके पास एक ट्रेंड इक्वेशन आ जाएगी। देन नेक्स्ट question is, in the method of moving average the second average is the mean of what? ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन ट्रिकी था। ट्रिकी क्यों था, बिकॉज हमें क्या फाइंड आउट करना है, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज दिया हुआ है तो मूविंग एवरेजेस फाइंड आउट करनी है, और मूविंग एवरेज में भी हम सेकेंड एवरेज की बात कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास एक फर्स्ट एवरेज आएगी, सिमिलरली हमारे पास एक सेकेंड मूविंग एवरेज आएगी, एंड सो ऑन हमारे पास मूविंग एवरेजेस आएंगी। राइट, यही होता था मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। और इस मेथड में क्या होता था, अगर हमें फर्स्ट एवरेज निकालनी है तो उसके लिए अगर लेट से आपको थर्ड या फिर 3 ईयरली मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है, आई ऑल्सो सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपको 3 ईयरली मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है तो हम इसमें क्या करते थे, फर्स्ट एवरेज के लिए सेकेंड ऑब्जर्वेशन के सामने आपके पास फर्स्ट एवरेज आती थी, उससे पहले आपके पास एक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होती थी और उसके बाद एक थर्ड ऑब्जर्वेशन होती थी। हम इन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को ऐड करते थे और फाइनली डिवाइड कर देते थे 3 से। तो बेसिकली हमने क्या किया, अगर आपके पास mth मूविंग एवरेज होती है तो हम क्या करते, m टर्म्स को ऐड करते, और m टर्म स्टार्ट कहाँ से होती, फर्स्ट से लेके आपकी m+1 टर्म से।
या फिर फर्स्ट टर्म से लेके mth टर्म तक, बिकॉज अगर आपके पास 3 है तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। सिमिलरली अगर हम सेकेंड मूविंग एवरेज की बात करते तो आप कहाँ से स्टार्ट करते, सेकेंड से, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे क्या हो जाता, सेकेंड से लेके m+1 हो जाता, m+1 टर्म एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सेकेंड एवरेज की बात हुई है, सेकेंड एवरेज कहाँ से स्टार्ट होगी या फिर मीन किसका होगा, m टर्म्स का। और m टर्म्स स्टार्ट कहाँ से हो रही होंगी, यहाँ पे वर्ड स्टार्टिंग मिसिंग था, स्टार्टिंग फ्रॉम दी सेकेंड टर्म टू m+1th टर्म। क्लियर। तो यहाँ पे जो बॉक्स में भी आप देख सकते हो, अगर हमारे पास फर्स्ट एवरेज फाइंड आउट करनी थी तो इट इज़ मीन ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स। जैसे हमारे पास फर्स्ट एवरेज थी इन द केस ऑफ 3 ईयरली मूविंग एवरेज, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म ली थी हमने, उसका मीन लिया था। अगर सेकंड एवरेज फाइंड आउट करनी है, इट इज़ द मीन ऑफ m टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड डेटा अप टू m+1th टर्म। Similarly, third average is the mean of m terms starting from third to m+2th term and so on. ओके, तो एज सच क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी, बस प्रॉब्लम कहाँ आई थी, प्रॉब्लम इसमें आई थी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी थी, या फिर एक वर्ड स्टार्टिंग मिसिंग था इस इन ऑप्शंस में से। ओके, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। So question is that you have to calculate the yearly moving average of the given data. डेटा आपके पास है, ईयर्स हैं, प्रोडक्शन का डेटा है, 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस आपको फाइंड आउट करनी है। तो 3 ईयर मूविंग एवरेज क्या होगा, टोटल डिवाइडेड बाय 3। तो पहले हम टोटल फाइंड आउट करेंगे और फिर 3। फर्स्ट ईयर के लिए हम नहीं फाइंड आउट कर सकते बिकॉज इससे प्रीसीडिंग हमारे पास डेटा नहीं है। सेकेंड ईयर के लिए 1981 के लिए 1981 का डेटा प्लस उससे पहले का डेटा प्लस उससे बाद का डेटा, तो ये क्या हो जाएगा 14। फिर 1982 के लिए 1982 का डेटा प्लस उससे पहले का डेटा प्लस उसके बाद का डेटा, तो ये हो गया 16। 1983 के लिए 1983 का डेटा प्लस उससे पहले का डेटा प्लस उससे बाद का डेटा, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ से इक्वल टू 18। देन 1984 के लिए 1984 का डेटा प्लस उससे पहले का डेटा प्लस उससे बाद का डेटा विच इज़ इक्वल टू 21। 1985 के लिए हम नहीं फाइंड आउट कर सकते बिकॉज 1985 का डेटा है, उससे पहले का भी डेटा है बट उसके बाद का डेटा नहीं है। क्लियर। तो फिर 3 ईयर मूविंग एवरेज कैसे फाइंड आउट होगी, 14 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 4.67। देन 1982 के लिए 16 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 5.33। देन 18 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 6 एंड फाइनली 21 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 7। तो हमारे पास यहाँ पे मूविंग एवरेजेस आ गई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सेकेंड मूविंग एवरेज की बात करनी थी जो कि है ये वैल्यू 16 और उसके बाद करस्पॉन्डिंग 5.33। तो क्वेश्चन क्या था, इट इज़ द मीन ऑफ व्हाट, इट इज़ द मीन ऑफ सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड टर्म टिल m+1th टर्म। m+1 मतलब अगर हमारे पास ये m3 था तो टिल योर फोर्थ टर्म। ओके, इज दिस क्लियर नाउ। सेकेंड टर्म से स्टार्ट करोगे और m+1th टर्म पे जाओगे या फिर फोर्थ टर्म तक आप इनका एडिशन करके फाइनली इसका एक मीन फाइंड आउट कर लोगे। ओके, नाउ आई थिंक these all were the questions जो 2022 पेपर में आए थे। now moving forward to 2021 क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, एज सच कोई डिफ़िकल्टी लेवल टॉपिक 11 में नहीं था। इफ़ यू हैव गॉन थ्रू ऑल द मेथड्स एंड इफ़ यू नो कि इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ओके, तो 2021 क्वेश्चन पेपर
में फर्स्ट क्वेश्चन था, यूजिंग द मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस सेक्युलर ट्रेंड इज मेजर्ड व्हेन? इट इज़ मेजर्ड व्हेन योर ट्रेंड इज़ लीनियर। सेमी एवरेजेस में क्या होता था? सेमी एवरेज में हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डेटा को डिवाइड कर देते थे इनटू 2 पार्ट्स, ओके, और फर्स्ट पार्ट का एवरेज निकाला और सेकेंड पार्ट का एवरेज निकाला, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया डेटा को, फर्स्ट का एवरेज निकाला, सेकेंड का एवरेज निकाला, और उसको फिर हमने फर्स्ट एवरेज को प्लॉट किया, सेकेंड एवरेज को प्लॉट किया, और उन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, तो दिस इज योर ट्रेंड। तो सेक्युलर ट्रेंड इज मेजर्ड व्हेन योर ट्रेंड इज लीनियर। बाकी ऑप्शंस क्या थे? बाकी ऑप्शंस थे टाइम सीरीज कंप्राइजेज ऑफ इवन नंबर ऑफ वैल्यूज, नहीं, ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज भी हो सकती हैं। ऑड वैल्यूज में क्या होगा? ऑड वैल्यूज में जो आपका मिडल डेटा होता, लेट्स से यहाँ पे कोई वैल्यू थी, इधर क्रॉस क्रॉस, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू थी तो आप उसको स्किप कर देते, उसके ऊपर वाले पार्ट को उसके ऊपर वाले पार्ट के एवरेजेस लेते और उसके नीचे वाले पार्ट की एवरेज लेते। देन सेकंड, टाइम सीरीज इज बेस्ड ऑन एनुअल वैल्यूज, नहीं, यहाँ पे ईयर्स हैं, हम यहाँ पे मंथ्स भी ले सकते थे, या फिर हम यहाँ पे वीक भी ले सकते थे, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड सो ऑन। देन ट्रेंड इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन, नहीं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि ट्रेंड शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द मीन। सो करेक्ट आंसर इज ट्रेंड इज लीनियर। Then next question, which of the following option is incorrect for the component of time series? First option is, a trend is a gradual upward or downward shift in the level of series. Correct, इसे हम T से डिनोट करते हैं। Second, a non-seasonal cycle is repetitive, possibly unpredictable pattern in the time series values. Non-seasonal cycle मतलब आपके पास जो साइक्लिकल डेटा होता था या फिर साइक्लिकल कंपोनेंट होता है उसमें सीजन नहीं है, ओके। तो साइक्लिकल कंपोनेंट हमें पता है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर बिजनेस साइकिल्स हैं, ये रिपीटेटिव हैं बट दे आर पॉसिबली अनप्रिडिक्टेबल, हम पहले से प्रीवियसली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मोर ओवर अगर हम इनकी पीरियोडिसिटी की बात करें, so periodicity of cycle varies from time to time, so periodicity varies here. Then third is, a sudden temporary shift is referred as pulse. Correct. Observations where we have sudden movement in value, चाहे वो टेम्पररी टाइम के लिए हो, कम टाइम के लिए हो, बट सडन मूवमेंट्स आ गई हैं, दे आर नोन एज पल्स। देन फोर्थ, शिफ्ट इन द लेवल ऑफ टाइम सीरीज दैट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड आर रेफर्ड टू एज सीजनल साइकिल्स, नहीं, सीजनल साइकिल्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वी नो कि उनके रीज़न क्या हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर टाइम सीरीज़ में कोई कंपोनेंट है जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो आपका इर्रेगुलर कंपोनेंट है जो कि रैंडम मूवमेंट्स होती हैं, जिसे हम आई से डिनोट करते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the deseasonalized time series data will have only trend, cyclical and irregular components and is expressed as। तो हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव मॉडल होता है। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या होता था? y इज इक्वल टू t इंटू s इंटू c इंटू i एंड एट टाइम्स इंटू 100, ओके। अब अगर हमें इसे डीसीजनलाइज करना होता था तो हम इसको s से डिवाइड कर देते थे, तो t इंटू सी इंटू आई इंटू 100 रिमेनिंग रहता था, ओके। सो अगर हम डीसीजनलाइज कर देंगे टाइम सीरीज डेटा को, इट विल हैव ओनली t, c एंड i कॉम्पोनेंट, एंड किस फॉर्म में हम उसके लिख सकते हैं? t इंटू सी इंटू आई इंटू 100। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। Next, for the production data, the third 3-year simple moving average is, तो 3 years simple moving average फाइंड आउट करना है या फिर 3 year moving average फाइंड आउट करना है,
तो उसके लिए हमारे पास डेटा गिवन है। 3 ईयर मूविंग एवरेज है तो हम 3 साल का डेटा लेंगे। तो पहले मूविंग टोटल्स फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए नहीं फाइंड आउट कर सकते। सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, सेकेंड ईयर का डेटा प्लस उससे पहले ईयर का डेटा प्लस उसके बाद के ईयर का डेटा। सो दिस विल इक्वल टू 175। देन थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, थर्ड ईयर का डेटा प्लस उससे पहले का डेटा प्लस उससे बाद का डेटा विच इज़ इक्वल टू 244। फोर्थ ईयर के लिए क्या होगा, फोर्थ ईयर का डेटा प्लस उससे पहले ईयर का डेटा प्लस उससे बाद के ईयर का डेटा विच इज़ 174। फिफ्थ ईयर के लिए क्या होगा, फिफ्थ ईयर का डेटा प्लस उससे पहले ईयर का डेटा प्लस उसके बाद के ईयर का डेटा विच इज़ इक्वल टू 194। सिक्स ईयर के लिए हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब हमें क्या चाहिए था, अब हमें चाहिए था थर्ड या फिर थर्ड 3 ईयर सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। तो 174 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 58 इज़ द करेक्ट आंसर। आप इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, आप ये भी नहीं फाइंड आउट करो, ये भी नहीं, डायरेक्टली आप इसे फाइंड आउट करके 3 ईयर सिंपल मूविंग एवरेज फाइंड आउट, थर्ड 3 ईयर सिंपल मूविंग एवरेज फाइंड आउट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, recession in industry is associated with, recession in industry is a component of business cycle or business cycle is your or it explains your cyclical component। तो हमारे पास बिजनेस साइकिल में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन के बाद पीक आती है, पीक के बाद रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर ट्रफ आता है और फाइनली रिकवरी फेज आपका आ जाता है। तो रिसेशन, डिप्रेशन, ट्रफ एंड रिकवरी, दिस ऑल इज योर साइक्लिकल component। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर 2021 क्वेश्चन पेपर। अब आते हैं 2020 के क्वेश्चन पेपर पे। 2020 के क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन वाज द मूविंग एवरेजेस फॉर ट्रेंड ऑफ एक्सपोनेंशियल टाइप आर टू बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग व्हाट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल डेटा होता है देन ज्योमेट्रिक मीन रेलेवेंट रहता है जब आपका डेटा सेट दैट आर प्रोडक्ट्स और दे आर एक्सपोनेंशियल इन नेचर। तो करेक्ट आंसर तो ज्योमेट्रिक मीन होगा। और यहाँ पे हम जैसे पहले हम अर्थमेटिक मीन लेते थे, वो वैल्यूज़ को ऐड करते थे, यहाँ पे हम उनका ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन is the secular trend is depicted by the method of semi averages when trend is linear। सेम क्वेश्चन आपका 2021 के क्वेश्चन पेपर में भी आया था एंड देयर वी सॉ कि ट्रेंड आपका लीनियर होगा। हम फर्स्ट हाफ डेटा का एवरेज फाइंड आउट करेंगे, सेकंड हाफ डेटा का एवरेज फाइंड आउट करेंगे, उन दोनों को एक लाइन से कनेक्ट करेंगे और आपके पास ट्रेंड लीनियर आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, linseed crops badly spoiled on the account of rains is an example of which। so it is a random movement। अगर कोई भी क्रॉप आपकी ख़राब होती है, डिस्ट्रॉय होती है, इट इज़ एक्सीडेंटल, ओके, एंड इट इज़ रैंडम इन नेचर। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ रैंडम मूवमेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इरेगुलर फ्लक्चुएशंस और रेजिडुअल कंपोनेंट होता है आपके टाइम सीरीज़ का। Next, by the method of moving average, the seasonal index for 4 quarters is equal to what? So it is equal to your average divided by grand average into 100। आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 क्वार्टर्स अलग से लिखा हुआ है सो दैट आप 4 वाला ऑप्शन देख लो, ओके। या फिर कई बुक्स में, कई रेफरेंस बुक्स में दिस विल बी एवरेज अपॉन जनरल एवरेज इनटू 100। और इसका और फॉर्मूला क्या होता था, अगर हम एवरेज और जनरल एवरेज को ओपन करें तो दिस विल बी एक्स आई बार डिवाइडेड बाय एक्स आई बाय 4 इनटू 100। ओके, सो एवरेज अपॉन ग्रैंड एवरेज इनटू 100 इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज इज, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में हम सारे कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 t इंटू एस इंटू सी इंटू आई इज द करेक्ट आंसर. देन लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉमिनल डेटा. नॉमिनल डेटा में हमारे पास क्या होता है, नॉमिनल डेटा इज अ टाइप ऑफ डेटा जहाँ पे हम नेमिंग या फिर लेबलिंग कर रहे हैं विदाउट प्रोवाइडिंग एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू. चाहे आप उसको 10 नेम करो, लेबल करो या 11 लेबल करो, एज सच उसकी वैल्यू नहीं है. दैट डज नॉट मीन कि जिस प्रोडक्ट को मैंने 11 लेबल किया है दैट हैज़ अ हायर वैल्यू, ऑन दी अदर हैंड जिसको 10 लेबल किया है दैट हैज़ अ लोअर वैल्यू. इट इज़ जस्ट लेबलिंग. कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, वो कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं है उसकी. ओके, सो it serves as sort of tags or label to classify or identify the objects and do not have any value as such. ट्रेन को आप नंबर दे दो, ट्रेन नंबर अगर हमारे पास 3 ट्रेन हैं, ओके, ये है आपके पास ट्रेन 1, ये 2 और ये 3. 1 2 3 का बेसिक मतलब बस इतना ही होगा कि ये किसी और डायरेक्शन में जाएगी, ये किसी और डायरेक्शन में, ये किसी और डायरेक्शन में. उससे ज़्यादा इन नंबर्स की कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है. देन कार प्लेट नंबर, जो भी आपका कार का नंबर है उससे आप कार को लेबल कर रहे हो या फिर कार को टैग कर रहे हो. इट डज नॉट हैव एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू. रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, चाहे मैं, लेट सपोज माय नेम इज़ रचित, अगर मैं रोल नंबर 1 हूँ या 10 हूँ, डज नॉट give me any quantitative value. It is just a labeling of the name. Then last option, number of students in management institutes, it has a quantitative value. It is of significance कि कितने students हैं उस particular management institute में. So this is not a nominal data. बाकी सब आपके nominal data हैं. Similarly नॉमिनल डेटा के लिए हम नॉमिनल स्केल यूज़ करते हैं. एक और स्केल कौन सा होता है हमारे पास, एक और स्केल होता है ऑर्डिनल स्केल. ओके, तो हम कई बार कहते हैं कि फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इज़ योर नॉमिनल स्केल एंड सेकंड लेवल ऑफ मेजरमेंट इज़ योर ऑर्डिनल स्केल. इसमें हम ऑर्डर भी करेंगे और रैंक भी देंगे. ओके, तो ऑर्डिनल डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल डेटा होता है. अब अगर हमारे पास यहाँ पे रेटिंग्स हैं ऑफ रेस्टोरेंट की, तो इसमें आपने क्या किया, इनको रैंक दी और रैंक के साथ साथ आपने इनको ऑर्डर दिया. अगर रेटिंग ए बी सी डी और ई हैं, ए फॉर वेरी गुड एंड ई फॉर पुअर, देन ऑब्वियसली आपने रेस्टोरेंट को एक ऑर्डर दिया है प्लस उनको एक रैंक दी है आपने. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल स्केल एंड दिस इज़ सेकेंड लेवल ऑफ मेजरमेंट. फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इज़ योर नॉमिनल स्केल. ओके, देन या सो स्टार्टिंग विद 2019 क्वेश्चन पेपर. The rise in the number of patients due to heat stroke is an example of seasonal variation. Heat stroke कब होता है, जब ज़्यादा गर्मी होती है. गर्मी कब होती है, समर सीज़न में. समर सीज़न एवरी ईयर आता है and therefore it is an example of seasonal variation. Seasonal variation क्या होते थे, it is a pattern of variation in time series that repeats every year. Okay, it is found in the data within a time period whose shape repeats in every successive period. And so heat stroke which could be due to summer season is an example of seasonal variation. Every year you read in the newspaper, summer season जब start होता है कि so and so patients, so and so number of patients are admitted due to heat stroke. Then next question, additive model of time series. जब हम सारे कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो एडिटिव मॉडल हो जाता है. फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आपकी ट्रेंड इक्वेशन है. जब आपका ट्रेंड एक लीनियर ट्रेंड हो,
थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन अगेन आपकी ट्रेंड इक्वेशन है, यहाँ पे ट्रेंड पैराबोलिक होता है। और फोर्थ क्या है? फोर्थ इज योर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, जहाँ पे हम सारे कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। Then question number 41, the index that indicates the progress or recession of an economic cycle in a group of time series is called, this index is known as diffusion index. diffusion index, जैसे हमारे पास और इंडेक्स होते थे, हमने लास्ट पे स्पाशेस पढ़ा था, वो कुछ और हमें बताते थे। डिफ्यूजन इंडेक्स हमें इकोनॉमिक साइकिल के बारे में बताता है कि कितना प्रोग्रेस है या कितना रिसेशन है, या फिर हम कहते हैं कई बार ये इकोनॉमिक टर्निंग पॉइंट्स बताता है। इफ़ यू रिमेंबर, हमारे पास जो बिज़नेस साइकिल भी होती थी, बिज़नेस साइकिल में हम इधर से स्टार्ट करते थे, ऐसे ऐसे हमारे पास कंपोनेंट्स होते थे, जिसमें हमारे पास रिसेशन भी होता था, रिकवरी फेज भी होता था, तो वो उन्हें हम कई बार टर्निंग पॉइंट्स भी कहते हैं। तो डिफ्यूजन इंडेक्स इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर विच डिटेक्ट्स द इकोनॉमिक टर्निंग पॉइंट्स एंड इट टेल्स अस अबाउट द प्रोग्रेस और रिसेशन, और हमें ये भी बताता है कि कितना वाइड स्प्रेड है वो रिसेशन या फिर वो रिकवरी कितनी वाइड स्प्रेड है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, डिफ्यूजन इंडेक्स। नेक्स्ट, द सेकेंड डिग्री पैराबोला इज फॉर्म फिटिंग टू द टाइम सीरीज व्हेन द वेरिएशंस आर नॉन लीनियर। अगर हमारी वेरिएशंस होंगी तो हम वहाँ पे पैराबोलिक ट्रेंड को फिट करते हैं, और उस ट्रेंड की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अगर बस हम इक्वेशन की बात करें तो ये पैराबोलिक है, लीनियर तो है नहीं, तो पैराबोलिक और नॉन लीनियर है ये, करेक्ट। तो दिस इज पैराबोलिक और नॉन लीनियर, और यहाँ पे हमारे पास सेकेंड डिग्री पैराबोला होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग production data for a sugar factory is given. What is the estimate of production for 2008 using straight line trend with the origin when the origin at year 2001 by least square method? तो अगर हम इनके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका आंसर थोड़ा गलत आएगा, और इनके आंसर को अगर हम फिट करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम 2001 को ओरिजिन ईयर नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे? मिडिल मोस्ट ईयर फाइंड आउट करेंगे और उसको हम ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे। तो हमारे पास x होगा, xy होगा और x स्क्वायर होगा। अगर हमें लीनियर ट्रेंड फिट करना है, इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहाँ पे a क्या होता है? अगर समेशन x 0 है तो a इज इक्वल टू समेशन y अपॉन n, और b क्या होता है? b इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो x हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? 2004 को ओरिजिन लिया तो x फॉर इट इज़ 0, उससे पहले -1 -2 और -3, उसके बाद 1 2 और 3। एक्स वाई में हम ये प्रोडक्शन को y कंसिडर करें अगर, तो x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -228, देन 87 इंटू -2 आएगा -174, दिस विल बी -95, ये 0, ये 91, ये 192 एंड दिस इज 270। एक्स स्क्वायर के लिए -3 का स्क्वायर इज 9, -2 स्क्वायर इज 4, 1 0 1 4 एंड 9। क्लियर? तो a के लिए समेशन y चाहिए, समेशन y इज इक्वल टू 616, सो दिस इज इक्वल टू 616 अपॉन n कितना है? n इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से ये आ जाएगा इक्वल टू 88। तो a की वैल्यू आ गई। अब हमें b की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो b क्या है? समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स वाई यहाँ से आपके पास आएगा इज इक्वल टू 56, समेशन एक्स स्क्वायर आएगा इक्वल टू 28। तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग भी सेम वैल्यूज़ आ रही हैं।
तो b क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 56 अपॉन 28 विच इज़ इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू क्या आई, इक्वल टू 2। तो ट्रेंड इक्वेशन क्या हुई, y इज इक्वल टू 88 प्लस 2 इंटू एक्स। हमें 2008 के लिए एस्टिमेट करना था, तो y फॉर 2008, अगर 2007 में x की वैल्यू 3 थी तो 2008 में क्या हो जाएगी, इट विल इक्वल टू 4। तो ये हो गया 88 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 96। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो वाई डिड आई से कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो आपका ये वाला मेथड फॉलो होगा, बिकॉज अगर हम देखते तो दे सेड दैट 2001 इज़ द ओरिजिन ईयर। दैट मीन्स हमें ज़ीरो कब लेना चाहिए था, 2001 के लिए। फिर 2002 के लिए 1 होता, 2 होता, फिर 3, 4, 5, 6 एंड 2008 के लिए आपके पास x की वैल्यू 7 होती। बाकी सारी कैलकुलेशंस आपकी सेम रहती, सेम एज इन अगर आप ये कैलकुलेशन ना करके जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते तो आपके पास a और b की वैल्यूज़ सेम आती। बस क्या डिफरेंस आ जाता, वहाँ पे हम जब y फाइंड आउट करते इज़ इक्वल टू 88 प्लस 2x, तो x की जगह 7 होता, तो वो हो जाता 88 प्लस 14 विच इज़ इक्वल टू 102 विच इज़ नॉट इन द गिवन ऑप्शंस। I hope it is clear. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रॉस सेक्शनल डेटा। तो हमारे पास 3 टाइप के डेटा होते हैं। फर्स्ट होता है टाइम सीरीज डेटा। ओके, टाइम सीरीज डेटा में लेट्स से कि आपके पास कोई क्लोथिंग ब्रांड है, लेट्स से एडिडास है। ओके, तो एडिडास का आपको डेटा गिवन है कि 2010 में एडिडास की ये सेल थी, 2011 में ये थी, 2012 में ये थी, 2013 में ये थी और 2014 में ये थी। अगर आपके पास इस टाइप का डेटा होता है तो हम उसे टाइम सीरीज डेटा कहते हैं कि ओवर द टाइम पीरियड इस क्लोथिंग ब्रांड का क्या सेल्स का डेटा था। सेकेंड टाइप ऑफ डेटा होता है क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल डेटा में हम टाइम पीरियड फिक्स कर देते हैं, लेट्स से 2015। ओके, 2015 में अब हम देखेंगे कि अलग अलग जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, चाहे वो एडिडास हो, चाहे वो नाइकी हो, या चाहे वो कोई भी और XYZ ब्रांड हो, कि उनका 2015 में सेल्स का डेटा क्या था। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ योर क्रॉस सेक्शनल डेटा। And we have another thing which is known as panel data. पैनल डेटा में आपका टाइम भी ऐड हो जाता है और अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शनल डेटा भी आपका ऐड हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, 2011, 12, 13 इन ईयर्स में देखेंगे कि ब्रांड ए की क्या सेल्स थी, ब्रांड बी की क्या सेल्स थी और ब्रांड सी की क्या सेल्स थी। तो क्रॉस सेक्शनल का भी कंपोनेंट ऐड हो गया और टाइम का भी कंपोनेंट इसमें ऐड हो गया। ओके, सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ डेटा। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है विच इज़ अ क्रॉस सेक्शनल डेटा। तो टाइम यहाँ पे फिक्स्ड होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ऑप्शन नंबर 1 देखो, शेयर प्राइसेस ऑफ 5 कंपनीज ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो लेट्स से अगर हम मंडे की बात कर रहे हैं तो मंडे को कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी और कंपनी ई के शेयर प्राइसेस क्या क्या थे। टाइम इज़ फिक्स्ड बट कंपनीज आर वेरिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 2 देखें, डिपॉजिट्स ऑफ बैंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात हो गई, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका टाइम सीरीज डेटा। देन नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इन द लास्ट 3 ईयर्स, अगैन टाइम सीरीज डेटा। नंबर ऑफ कार्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इन द लास्ट 4 ईयर्स, अगैन टाइम सीरीज डेटा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। देन लास्ट क्वेश्चन, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of time series is known as histogram.
तो अगर हमारे पास हिस्टोरीग्राम है वो क्या बताता है, इट इज़ बेसिकली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of your time series data. It will tell you about the changes which have occurred at different time periods. For example, अगर हम annual sales of petrol देखें तो 85 में क्या sales थी, 86 में क्या sales थी, 92, 94, 95 and so on over the years क्या sales रही है of petrol. तो it is telling about or it is depicting your time series data. Hence answer is historygram. Okay, so that is all for today's lecture. If you have any doubt, you can email us, WhatsApp or Telegram, and do join the Telegram channel for the latest updates. Thank you so much and have a good day ahead.